इमेजिन करिए कि आप एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं ओशन के ऊपर और आपको कहा गया है कि एक डॉट जितने स्पॉट पर आपको लैंडिंग करनी है। क्या आप ये कर पाएंगे? तो ऐसा ही कुछ पूछा गया था एक पायलट से और उन्होंने बताया कि जो विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर हम लैंडिंग कैसे करते हैं। और ये वीडियो आपके ट्विटर पे भी है, तो पहले इस वीडियो को देखते हैं। हालांकि ये काफ़ी बड़ी वीडियो है पर फिर भी इसको देखिए, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। India's first indigenous aircraft carrier, INS Vikrant, a symbol of power, resilience, and Atmanirbhar Bharat. With 76% indigenous content, the ship is capable of operating a variety of fighter jets, including LCA Navy and MiG-29K, and multi-role helicopters. For a pilot, there is a proper runway, but for a naval aviator, it's a constantly moving strip which looks like just a small dot when the aircraft is airborne. Let's hear it from a MiG-29K pilot on what it feels like to land on an aircraft carrier. When we are flying in sea, there is no reference. We only have wide ocean, which is blue, open sky, and there is an aircraft carrier in front of us. So that one small dot in front of us is our landing spot. The size of this deck is limited, unlike airfields which are thousands of feet in length. So for us to land on one deck, precision is required, so much precision required that the aircraft is touching down so that we are able to arrest those three wires and that hook is able to engage so that we can stop in this much distance. However, for deck, it's a continuously moving aircraft carrier. It's a no-brainer that landing during the night is a task in itself, and the risk increases manifold on an aircraft carrier. Landing on a carrier is already difficult because it's a very small spot. If you see from the air, it looks just like a matchbox and it is always moving, it is rolling, it is pitching. And the difficulties increase manifold when you are landing at night, because at night you only have the indication of lights that are given from the carrier's deck. The light indicates as to what is the angle of a particular pilot's approach, if the approach is steep or it is shallow, and the light corrections are offered to the pilot. The pilot is expected to correct those immediately because there is not much time. The approach time to land on the deck is very small as the aircraft is approaching at a fast speed. And you also have a safety officer who sits on the deck continuously monitoring the aircraft, and it tells you if your approach is correct or not. तो अब तक तो आपने देख ही लिया होगा कि कितने प्रिसीजन की ज़रूरत है किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर एयरक्राफ्ट को लैंड करवाने के लिए। बट यहाँ पर जिस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हुई है उसका नाम है INS विक्रांत, जो कि इंडिया के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि वह इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में ही बना है और उसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था कोची में, जो कि 2013 में बनकर रेडी हो गया था। और इसको बनाने की टोटल कॉस्ट पड़ी थी $3.2 बिलियन, which is approx 23,000 करोड़। प्रेजेंट डे इंडिया के पास 2 फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जिनमें से पहला तो था INS विक्रांत और दूसरा है INS विक्रमादित्य, जो हमें रशिया के द्वारा प्राप्त हुआ। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं दुनिया के ऊपर कि पूरी दुनिया में किस किस कंट्री के पास कितने कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये जो लिस्ट है ये उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की है जो इस समय सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि उनकी जो पुराने हो गए थे और उनको डीमेंटल कर दिया गया है। तो इस टाइम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पे आता है लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स। ऑब्वियसली वो टॉप पे रहेगा क्योंकि उसकी जियोग्राफी ऐसी है कि उसको नेवल बेस अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। यदि आपको यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल बेस के ऊपर एक अलग सी वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो आगे देखते हैं। तो आगे आता है चाइना, जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं एंड एक उसका अभी भी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आता है इंडिया, जिसके पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं एंड एक अंडर कंस्ट्रक्शन एयरक्राफ्ट कैरियर है। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जापान के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, इटली के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रांस के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर एंड स्पेन, थाईलैंड, तुर्की के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर। साथ में ही यूनाइटेड किंगडम के साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का साथ है। तो शॉकिंगली यहाँ पर आप पाओगे कि रशिया के पास सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में मौजूद है, जबकि उसके 4 एयरक्राफ्ट कैरियर डीकमीशन है और उसका एक भी कैरियर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। और साथ ही साथ उसके पास टोटल 7 एयरक्राफ्ट कैरियर थे का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस टाइम वर्ल्ड वॉर का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, उस टाइम पे उसके एयरक्राफ्ट कैरियर फंक्शनल थे, बट अब वे ओल्ड हो गए थे और उनको डीमेंटल करना पड़ा। अब
जो रशिया है उसके पास सिर्फ एक ही सर्विस में एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब आप सोचोगे रशिया जैसी बड़ी कंट्री के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि इंडिया के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इसका आंसर है क्योंकि रशिया की जियोग्राफी ऐसी ही है। रशिया को अपनी जियोग्राफी में जो टोटल उसकी कोस्ट लाइन है उस पर कम एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। द ऑल डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफी। यदि आपको जियोग्राफी से रिलेटेड और काफ़ी वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम के पास 41 और यूनाइटेड स्टेट्स के पास 55 एंड जापान के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर प्रेजेंट थे। और ये टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का, क्योंकि उस टाइम ये तीनों कंट्रीज के बीच में युद्ध चल रहा था और ये तीनों कंट्रीज धड़ाधड़ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर लगी हुई थी। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने काफ़ी पैसा भी स्पेंड किया था। तो बट अब वो ओल्ड हो चुके हैं तो इनको डिमेंटल करने पड़े। अब इनको ज़रूरत इतनी नहीं है, तो इनके पास इन सर्विस कम एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। बट इंटरेस्टिंगली अब यूनाइटेड स्टेट लीड्स में है जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। मीन्स यदि आप इंडिया, इटली, जापान, चाइना और यूनाइटेड किंगडम और रशिया के एयरक्राफ्ट कैरियर में मिला दो तब भी यूएसए के पास मिलाकर भी उनसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये डायरेक्ट इशारा करता है कि हाउ यूएस इज कंसर्न विद इट्स नेवल पावर एंड थ्रेट विद इट्स नेवी फोर्सेस। ओके, उसको काफ़ी थ्रेट है जो नेवी के थ्रू ही है, क्योंकि उसके ऊपर जो आता है वो कनाडा आता है एंड नीचे जो आता है मैक्सिको आता है, जिनके साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। तो उसको जो भी थ्रेट है वो नेवी का ही है, इसलिए वो अपनी नेवल बेस स्ट्रॉन्ग रखता है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक ड्रॉप करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।